اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جزاک اللہ. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں علم کی بنیاد پر اس طریقے کی ایک محفل منعقد کرنے کی توفیق دی. کیونکہ آج کی جو محفل ہے یہ صرف بچوں کی تہنیت ہی نہیں بلکہ اعزاز انسانیت کی تہنیت کی خوشی بھی ہے. کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ ملا صرف اور صرف علم کی بنیاد پر ملا. اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے تو ہم انشاءاللہ ہر زمانے میں ہر ماحول میں کامیاب ہیں. اس کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس موقع پر میں آئے ہوئے تمام لوگوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ اس طریقے کی مجلس منعقد کر کے علم کے پیمانے کو اور علم کے گہوارے کو ہم بلند سے بلند تر مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں اس خوبصورت پروگرام کے منتظمین کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ سب نے اس ہونہار طلبہ کی ہمت افزائی کے لیے یہ تقریب رکھی اور مجھے بھی اس خوشی کے موقع پر شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا. آج ہم ان ہونہار طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے نیٹ میں شاندار کامیابی حاصل کر کے اپنے والدین، اساتذہ، اپنے اسکول، کالج اور شہر کا نام روشن کیا ہے. میں تمام کامیاب طلبہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت بہت مبارک. مجاہد صاحب، میرے دوست صدر محفل، میرے عزیز دوست انیس صدیقی صاحب، سلیم صاحب اور ہمارے اس محفل کے روح رواں حیدر باغوان صاحب اخباری مراسلوں کے ذریعے بھی قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں ہی فیلڈ میں مزید کامیابی عطا فرمائے. اب رہا بچے جو نیٹ پاس ہوئے ہیں طلبہ، آج ہمارے قوم کے لیے، ملت کے لیے ڈاکٹر اور انجینئر کی بہت ضرورت ہے. اور یہ دو فیلڈ ایسے ہیں جو دنیا رہنے تک باقی رہنے والی. جب تک دنیا ہے لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک انسان زندہ ہے اس کو رہنے کے لیے گھر، بنگلے، روڈ ضرورت پڑتی ہے. اور دیگر قوم کے بچوں کو جو ہے ڈل بنا کے سڑکوں پر گھومنے دیجیے. ہمارے بچے جو ہے نیٹ میں پاس ہوئے اور ایسے وقت پاس ہوئے کہ پیپر لیک کے دور میں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیپر لیک کے دور میں ہمارے بچے پڑھ کے محنت سے پاس ہو رہے ہیں. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. پارٹی آف انڈیا WPI کے ریاستی نائب صدر ہیں، لیکن آپ کا مزاج پہلے سے ہی سیاسی رہا ہے. آپ جب سے ہوش سنبھالے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کے ہمارا ساتھ SIU کے زمانے سے ہے. تب سے آپ ایک سیاست سے، دینی خدمات سے
खल्क़ की खिदमत से करने के जज्बे से आप आगे बढ़े हैं और गुलबर्गा में जब आप कदम रखे हैं तो एक बड़ा चैलेंज लेके आप आए हैं। मेरे को आप आने के बाद मैं समझता हूँ आपको आज भी स्ट्रगल करना है और वो स्ट्रगल में आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसलिए कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस आपका जो बैकग्राउंड है बसो कल्याण में अगर हम लोग जाएंगे तो हमको समझ में आता है कि आपके वहाँ क्या खिदमत है, आप किस तरह के इदारे वहाँ चला रहे हैं और कितने कामयाब इदारे आप वहाँ चला रहे हैं। ये हमारे को समझ में आता है कि बसो कल्याण की तारीख अगर आप उनकी जानेंगे तो ये आपकी शख्सियत कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, मुतारुफ शख्सियत आप हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिस मकसद से आप गुलबर्गा में आए हैं अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। आज का ये तहनीयती इजलास एक ऐसे मकसद के तहत रखा गया है जिसे हम हौसला अफजाई कहेंगे। जिन तलबा और तालिबात ने नीट का इम्तिहान कामयाब किया, ये कोई आम सी या मामूली सी बात नहीं है। चूँकि मैं तालीमात से वाबस्ता रहा हूँ और बिलखुसूस यूसी के एक लेक्चरर की हैसियत से मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि नीट के लिए कितनी मेहनतें, कितनी जस्तजू और कितनी रातें आपको जो है उसके लिए सख्त करनी पड़ती हैं जब कहीं आप नीट में कामयाब होते हैं। मैं दिल की गहराइयों से जाहिद पाशा साहब और उनके आइडियल अकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पहले साल इस तरह का मुजाहरा किया कि उनके पास और ये 5 तलबा ने, और ये जो अचीवमेंट है ये इंतहाई गैर मामूली अचीवमेंट है, गैर मामूली मुजाहरा है। ऐसे वक्त में जबकि जो है आप देखते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा हुआ और हमने देखा कि कई जो तलबा और तालिबात थे पहले इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान देते वक्त ज़हनी तौर पर आमादा नहीं थे, ज़हनी तौर पर वो मुंतशिर थे। इसके बावजूद भी आप तलबा तालिबात ने जिस तरह का मुजाहरा किया है ये यकीनन मुबारकबाद के काबिल है। तो मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आऊँगा मुजाहिद पाशा साहब के पास। उन्होंने जो नाम लिखे उनके पेरेंट्स से चुन के रखे हैं क्योंकि वो मुजाहिद है और ऊपर से पाशा हैं, पाशा हो गए मुजाहिद पाशा, बहुत सूटेबल नाम है उनके लिए। मेरी जो ज़मीन है, मेरा जो हाल है, जो मेरा प्रोग्राम है छोटा मोटा होता है लेकिन यहाँ पे बरकत होती है, इतनी बरकत होती है यहाँ पे, जो भी यहाँ से जाता है सक्सेसफुल हो जाता है। और मैं खुद यहाँ से सक्सेसफुल हुआ हूँ। मैं कुछ जब कभी भी जो भी मुझे हुक्म देते हैं कि खान साहब मैं आपके पास प्रोग्राम रखने वाली हूँ, क्या पूछने की जरूरत नहीं आपको, वेलकम, खुशामद। ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम होता है। आप हम कोई चीज़ नहीं है, आपका आना क्या हमारा जान। कभी हम सोचे थे यहाँ कभी आएंगे, कभी मेरे शानू हुआ में था साहब मेरे पास आएंगे, मुजाहिद पाशा साहब इतना स्टूडेंट बसों गरिया से मेरे पास आएंगे, क्या खुदा फरमाता हूँ इतने बड़ी सिटी में गुलबर्ग के। लेकिन ये मेरी अपनी लकी, मैं किस्मत वाला हूँ। आप जनाब मुजाहिद अली साहब के बारे में उन्होंने बताया, मुझे तो अब तारुफ हुआ उनसे, तो मैं उनकी कोशिशें और उनकी मेहनत के लिए पहले एक शेर कहना चाहूँगा उनके लिए। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद के लिए फरिश्ते उतर के आएंगे। अगर आपने ऐसा काम किया है तो अल्लाह ताला ज़रूर आपका साथ देगा और ज़रूर आप जो है इस काम को ये जो लेके उठे हैं इंशाल्लाह आपको हर घड़ी अल्लाह की मदद होगी। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। आरिफ मिर्ज़ा साहब ने अशार की उच्चार कर दिया, किसी शेर को हमारे लिए छोड़ा नहीं उन्होंने। हैदर अली बागवान साहब जो हमारे सफ़र के एक मुलाकात के हमारे साथी रहे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत इस प्रोग्राम को हमारे अरेंज करने में आपने जहमत उठाया, मैं दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्र बजा लाता हूँ। इस मौके पर मैं एक बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें हौसला चाहिए और हौसले के लिए मैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई बात ऐसी कहूँ। असल में इनकलाब जो होता है शायर के ख्याल और उसके दिल में जन्म लेता है और इसकी अमली शक्ल कायदीन करते हैं, सियासी और मुतब्बरीन करते हैं। तो शायर के जहन में इनकलाब होता है और वो पूरी कौम को ज़िंदा और बेदार करता है।
तो बहुत से अफराद यहाँ अपने शेर व सुखन से, अपनी सकाफत से कौम को ज़िंदा रखने और उसको हौसला देने का काम कर रहे हैं। मेरी छोटी सी कोशिश अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल हो जाए तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और उससे दुआ करता हूँ कि मुझे इस राह में साबित कदमी के साथ गामज़न रखें।